Hey, hello everyone. Welcome to the study topic. And today's topic is accounting principles and concepts. Accounting principle concept conventions are commonly known as generally accepted accounting principle or GAAP are the basic rules that defines the parameters and constraints within which accounting operates. These principles are the theory base of accounting on the basis of which financial statements are prepared. They are the guidelines for preparing financial statement. As we know, accounting is the language of business. So हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमें टर्म्स यूज करने हैं टू एक्सप्रेस आवर व्यू टू एक्सप्रेस आवर लैंग्वेज बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न प्रिंसिपल्स सिद्धांत रूल जिनके बिहाफ पे हमें अपनी लैंग्वेज को रखना है. ठीक है. सो दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट जो कि आपको एक पैरामीटर्स देते हैं जिनके बिहाफ पे आपको अपनी अकाउंटिंग करनी है. उसी के अकॉर्डिंग इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं फॉर योर बिजनेस. ठीक है. प्रिंसिपल्स आर द बेसिक or fundamental propositions and are generally accepted set of accounting principles based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. ये आपको एक बेस देते हैं. These are the basic fundamentals. ठीक है. जो कि generally accepted set of accounting principles based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. These principles are worldwide accepted. Fine. Accounting principles are the rules of actions or conduct adopted by accountant universally while recording accounting transactions. They are the norms or rules which are followed in treating various items of asset, liability, expenses, income and etc. It gives you guideline and these guidelines are universally adopted and accepted. When you prepare your financial statement following these principles, then your financial statement is worldwide accepted and it can be useful for all users of accounting information. So the principles are classified into two categories: accounting concepts and conventions. First is accounting concept. Accounting concepts are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. It is important to follow the accounting concepts because it will enable the users of financial statement to understand them better and in the same manner. आप जिस भी मैनर में जिस भी फॉर्म में अपने अकाउंटिंग कर रहे हो जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो जिस कंसेप्ट के बिहाफ पे आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है वो कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं एंड जो वो सारे ही कॉन्सेप्ट हर एक बिजनेस यूनिट अडॉप्ट कर रही है. सो फॉर एनी यूजर कोई भी उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रीड करता है सो इट इज बेटर फॉर देम टू अंडरस्टैंड देम एंड वो उसी मैनर में उसे समझेंगे जिस मैनर में या जिस वे में आपने उन्हें समझाने की या जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपने उनको डिलीवर की है कम्युनिकेट की है वो उसी इंफॉर्मेशन को ही समझेंगे जो कि आप उन्हें बताना चाहते हैं. ठीक है. अकाउंटिंग कन्वेंशन इज व्हाट? Accounting conventions are the outcomes of accounting principles or principles being followed by the enterprises over a time or over a period of time. Conventions may undergo a change with time to bring about improvement in the quality of accounting information. Suppose आपको एक होमवर्क मिला है 10 pages राइटिंग का एवरी डे. When you start writing down, आप एक पेज में अच्छी राइटिंग लिखोगे देन सेकेंड पेज में उससे अच्छी होगी या मे बी खराब भी हो सकती है बट 10 पेज जब आपको डेली करना होगा इट विल वो आप एक रूल फॉलो करो कि आपने एक रूल बना लिया कि मुझे ये ऐसी राइटिंग करनी. ठीक है. फिर आप उसमें से एक शॉर्टकट भी ढूंढ सकते हो या कोई एक नई राइटिंग इन्वेंट कर सकते हो जो आपकी एक प्रैक्टिस में आ जाए. ठीक है.
तो आपकी प्रैक्टिस करते करते शायद आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी बन जाए. तो वो कन्वेंशंस is sort of convention, accounting convention, which states these are the outcome of accounting practices or principles being followed by the enterprise over the time. आप कोई भी पॉलिसी, कोई भी मेथड, कोई भी प्रिंसिपल यूज कर रहे हो, सो आप कभी ना कभी उसमें से कुछ बेस्ट निकालते हो. सो वो बेस्ट अगर आपकी कंपनी, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है तो आप उसको अप्लाई करते हो. कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर मैंडेटरी टू फॉलो, बट कन्वेंशंस के साथ ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए वो कन्वेंशंस या वो वाले प्रिंसिपल्स यूजफुल है, देन यू कैन यूज इट. अदरवाइज यू आर नॉट मैंडेटरी टू फॉलो देम. सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स लाइक going concern concept, consistency concept, accrual concept, business entity principle, money measurement principle, accounting period principle, full disclosure principle, materiality principle, prudence or conservatism principle, cost concept and historical principle, matching concept or matching principle, dual aspect, revenue recognition. So in this video we are going to talk about only 3 assumptions, fundamental assumptions or concept, which is going concern assumption or concept, consistency concept, accrual concept. So first concept is going concern assumptions or concept. So in this principle, it is assumed that business shall continue for foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. It is because of these concepts that a distinction is made between a capital expenditure, that is expenditure that will render benefit for the long period, and expenditure that is one whose benefit will be exhausted quickly within the year. Let me explain you this. Going concern literally means आप अपने बिजनेस को, ये सिंपली ये जो अजम्पशन है, जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करते हो तो आपका बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे सिर्फ एक, वैसे बिजनेस का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, बट एक साथ में उसके साथ में भी एक अजम्पशन होता है हमारा, दैट इज अगर हम आज अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हम अपना बिजनेस इसलिए नहीं शुरू करते कि हम कल या परसों या फिर हम 10 दिन बाद, 1 महीने बाद अपना बिजनेस को शट डाउन कर देंगे, बट हमारे दिमाग में एक इंटेंशन होता है. हम इस इंटेंशन से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि मैंने अगर आज अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैं डे बाय डे इसमें ग्रोथ करूंगा, प्रोग्रेस करूंगा, सो दैट आई कैन अचीव more benefit from it. So यही ये कॉन्सेप्ट कहता है that it is assumed that business shall continue for foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. आप अपना बिजनेस इसलिए नहीं शुरू करते कि आप उसको 2 दिन बाद या एक लिमिटेड पीरियड बाद बंद कर दोगे. आप अपना बिजनेस इसलिए शुरू करते हो कि वो सालों साल, ईयर टू ईयर वो आपका बिजनेस ग्रो करे और चलता रहे. जब आप ये पॉलिसी, ये कंसेप्ट फॉलो करते हो, उसी के बिहाफ पे आप अपने एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई कर सकते हो इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. वेल इट्स प्रैक्टिकल पोर्शन, तो हम इसको दूसरे वीडियो में बात करेंगे. सो सिंपली थ्योरेटिकली आपको यहाँ पे ये समझना है, आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो वो आप एक दिन के लिए नहीं स्टार्ट करते हो, आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हो फॉर फोरसीएबल पीरियड, जहाँ पे आप अपनी बिजनेस को कंटिन्यू करोगे इन फ्यूचर. आप बंद करने के लिए, अपने बिजनेस को शट डाउन करने के लिए कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो. दिस कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. In this concept, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently after year.
The concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable with that of previous years. It eliminates personal bias and helps in achieving results that are comparable. Simply, बहुत सिंपल सा है. कंसिस्टेंसी का मतलब पहले समझते हैं. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसा. ठीक है. तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है जो भी मेथड, जो भी पॉलिसी, जो भी रूल आप अपनी अकाउंटिंग के लिए फॉलो कर रहे हो, अगर आपने 2009 में सपोज कोई एक पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट किया था, तो आप उस मेथड को एटलीस्ट आप कुछ दिनों तक, कुछ इयर्स तक आपको वो कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा. तभी आप बिजनेस में अपनी अकाउंटिंग या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंटिन्यू करो. अदरवाइज इससे जो बेनिफिट होता है, जो बेनिफिट की बात अगर हम करते हैं इस कॉन्सेप्ट्स की, कि अगर आपको अपने ही बिजनेस का ग्रोथ या फिर अपने ही बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है, आप कंपेयर कर सकते हो. कंपैरिजन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आप जिस भी चीज से कंपैरिजन कर रहे हो, एटलीस्ट उसमें एक कोई सेम बेस की यूनिट होनी चाहिए. मतलब अगर आपको कंपैरिजन करना है, सपोज यू आर इन 11th क्लास, अगर आपको कंपैरिजन करना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं या आप पढ़ाई में कैसे, सो इट्स ऑब्वियस कि आप अपने ही क्लास के बच्चे से अपना कंपैरिजन करेंगे, ना कि कोई किसी छोटे बच्चे से करेंगे जो कि आपसे क्लास में कम हो या उससे जो आपसे क्लास में बड़ा हो. आप सेम क्लास वाले से ही कंपैरिजन करोगे. सो इन कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे ऐसी ही चीज़ों को अडॉप्शन कर, ऐसी पॉलिसीज का अडॉप्शन करते हो जिनको आप कंपेयर कर सकते हो. एक जैसी पॉलिसीज को आप ईयर टू ईयर फॉलो कर सकते हो. येस, यू कैन चेंज दी पॉलिसीज और मेथड्स, बट आप एकदम से कोई चेंज नहीं कर सकते कि आपने 2019 में कोई पॉलिसी ली, देन आपने 2020 में दूसरी पॉलिसी फॉलो करी, बिकॉज आप 2019 और 20 के रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं कर पाओगे. आप अगर हर ईयर अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रहे हो तो आप 2 ईयर की चीज़ों को मैच नहीं कर पाओगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे. सो कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वंस selected and adopted should be applied consistently year after year. At least आप उसको कुछ टाइम दीजिए जो एक कंसिस्टेंट हो आपकी बिजनेस में. ठीक है. इससे फायदा क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या मिलता है? आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बेटर वे में समझ पाते हो. आप अगर एक ही चीज़ फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके बिजनेस में क्या हो रहा है. ग्रोथ हो रही है, डाउन हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, शटडाउन की कंडीशन में जा रहा है, मैच्योरिटी पीरियड पे है. तो ये आपको पता चलेगा जब आप एक ही चीज़ को फॉलो करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. आप एक ही चीज़ को फॉलो करोगे, देन यू ओनली नो कि हाँ आपके बिजनेस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. राहुल परचेजेस फिक्स्ड असेट, मे बी मशीन, फॉर 1 लाख रुपीज एंड चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको कहते हैं. 2 साल की ही लिए हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं. ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे जो मशीन की कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए है. ठीक है. 10% का जब हमने ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया एट द रेट ऑफ 10%, तो उसका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया वो है 10,000 रुपये. सो उस टाइम पे जब आपने डेप्रिसिएशन को कॉस्ट वैल्यू से माइनस किया तो 90,000 बुक वैल्यू आती है फॉर दैट ईयर. नेक्स्ट ईयर जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं तब हमने बुक वैल्यू में से फिर से 10% ऑफ 1 लाख रुपीज, हम यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो हम अपनी कॉस्ट वैल्यू पे ही लगाएंगे. सो अगेन डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 आया, हमने 90,000 रुपीज में से 10,000 माइनस किया, मतलब कि हमारी जो बुक वैल्यू आ रही है एट द सेकेंड ईयर, हमारी बुक वैल्यू 80,000 आ रही है. सपोज हम इस चीज को चेंज कर देते हैं, इस मेथड को चेंज कर देते हैं, हमारी कॉस्ट वैल्यू सेम रहेगी. 1 लाख रुपीज की मशीन है, हमने फर्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया एट द रेट ऑफ 10%, 10,000 का डेप्रिसिएशन आया
हमने लेस किया, बुक वैल्यू आई 90,000। 90,000 में से अब हमने क्या करना है, जो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है वो आपकी बुक वैल्यू पे प्रोवाइड होगी, क्योंकि हम यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी रिटन डाउन वैल्यू मेथड थी, मतलब जो 90,000 आया था, आपको उस पर 10% का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो इट मीन्स कि वो 9,000 डेप्रिसिएशन आपका आया। ठीक है, जैसे ही आपने 9,000 को 90,000 में से माइनस किया, आपकी बुक वैल्यू बन गई 81,000। ठीक है, सो अब ये चेंज क्या हुआ, आपने सेम मेथड किया, आपने 10% का ही डेप्रिसिएशन दिया था दोनों मेथड्स में, आपकी कॉस्ट वैल्यू सेम थी, कोई चेंज नहीं था, बट आपकी जो बुक वैल्यू थी फॉर द सेकेंड ईयर वो दोनों में चेंज आई, 1,000 का फर्क आया। अब ये फर्क क्या है, द इफेक्ट ऑफ चेंज विल बी द डेप्रिसिएशन इन सेकेंड ईयर विल बी द लेस by the 1,000 and its effect on profits will be that it will be more by the 1,000 and also assets will be more by the 1,000 rupees। अगर आप ऊपर वाली फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करते हैं, उस केस में आपकी जो असेट की वैल्यू है वो इंक्रीज रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू ज्यादा आ गई, आपकी असेट की वैल्यू इंक्रीज रहेगी, आपका प्रॉफिट इंक्रीज रहेगा। बट सेकेंड वाली कंडीशन में क्या था, आपकी बुक वैल्यू ज्यादा आ गई, 1,000 ज्यादा आ गई, तो मतलब 1,000 से आपका प्रॉफिट लेस हो जाएगा और आपकी जो बुक वैल्यू होगी, जो असेट की वैल्यू होगी, वो भी कम हो जाएगी। दी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जहाँ पे आप दो मेथड से सेम डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज कर रहे थे, जहाँ पे उसकी असेट की वैल्यू चेंज हो रही थी। पहले वाले में 80,000 आ रही थी, दूसरी वाले में 81,000 आ रही थी। ठीक है, देन सेकेंड इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट। बहुत करते अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही बेसिक सा है, मतलब अगर आप अकाउंटिंग, a transaction is recorded at the time when it takes place, not when the settlement takes place. The concept is particularly important because it recognizes the assets, liabilities, income and expenses as when transactions relating to it are entered into. बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इट्स दैट यहाँ पे आपको इस कंसेप्ट में क्या फॉलो करना है, जिस भी दिन आपने ट्रांजैक्शन प्लेस हुआ है, मतलब जब भी ट्रांजैक्शन हुआ है, आपको वो डेट रिकॉर्ड करनी है। इंस्टेड आपको वो डेट नहीं रिकॉर्ड करनी है जब आपको उसका सेटलमेंट हो। बहुत सिंपल सी बात है, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म, तो हमने एक चीज बात की थी वहां पे, क्रेडिट सेल और परचेज की। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, हम कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे, हमारा कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, सपोज आपने कोई चीज परचेज की है, आज की डेट में आपने उसको परचेज किया है, आपने उसके सेटलमेंट नहीं किया। सेटलमेंट का मतलब होता है अकाउंट्स में कि आपने उसको कैश अमाउंट देके आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, बस आपने वो सामान खरीद लिया है और आप उसको यूज कर रहे हो। आप कभी उसको पैसा दोगे, ऐसा नहीं आप पैसा दोगे उसको, बट आपने एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज आपने वैसा नहीं दिया है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आज आपने कोई भी चीज खरीदी हो, उसका पैसा नहीं दिया, आपने उसको सेटलमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं है, आपको वो सेल या परचेज जो भी है वो आपको रिकॉर्ड करनी है। आप उसको रिकॉर्ड करोगे जब भी वो चीज हुई है, जब भी वो ट्रांजैक्शन हुआ है, इंस्टेड कि वो आपको कब सेटलमेंट होगा, आपको कब चीज कैश रिसीव होगा, उस टाइम पे आपको नहीं रिकॉर्ड करना है। जब भी आपका वो ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस दिन आपकी सेल, क्रेडिट की सेल परचेज जो भी हुई है, आपको उसी सेम डेट पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, नीचे दिया है, राहुल परचेज्ड अ कंप्यूटर ऑन 1 जुलाई 2019। राहुल ने कंप्यूटर खरीदा है 1 जुलाई 2019 में, जो कि 30,000 रुपए का है, और वो 30,000 की अमाउंट जो कंप्यूटर की थी वो उसको पे करेगा, मतलब उसने पे की थी 19 जुलाई 2019, मतलब कि पूरे 18 दिन बाद वो पेमेंट या सेटलमेंट कर रहा है। ठीक है, सिंस द असेट हैज बीन एक्वायर्ड
by the Rahul and has in the process incurred a liability to extent of the amount on 1st July 2019. Simply it means 1 जुलाई को जो उसने कंप्यूटर खरीदा था उसके बाद उसने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, उसकी एक लाइबिलिटी बन गई. जब उसने क्रेडिट पे परचेज की तो जो 30,000 का अमाउंट था वो राहुल के लिए लाइबिलिटी बन गई, जो लाइबिलिटी उसको पे करनी है. सो जब हम लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं इट मीन्स कि यहाँ पे अक्रूवल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज आपने जो चीज़ खरीदी थी उसका पैसा नहीं दिया, उसको सेटलमेंट नहीं दिया, इस वजह से आपकी लाइबिलिटी बन गई क्योंकि वो अभी भी आपको पे करनी है. सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट सिंपली ये कहता है जब भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, जब भी वो ट्रांजैक्शन हुआ है आपको उसी डेट पे उसको रिकॉर्ड करना है, ना कि आपको तब रिकॉर्ड करना है जब आपको उसका सेटलमेंट हो या कैश पेमेंट हो. जिस दिन जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, वेदर इट इज सेल या परचेज क्रेडिट पे हुई है, आपको उसी डेट पे ही उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है. इससे क्या होगा, आप अपनी लाइबिलिटीज को या होने वाले प्रॉफिट को जो फ्यूचर में होगा, जो आपको रिसीवेबल्स हैं इन फ्यूचर, वो आपको पता चल जाएंगी और आपको अपनी लाइबिलिटी पता चलेगी कि अगर मैंने कहीं से ये चीज़ें परचेज की है तो मुझे कहीं ना कहीं इसको बाद में पे करना है. तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट इस पे फोकस करता है, आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, वेदर वो उसका सेटलमेंट हुआ है नहीं हुआ है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें फर्स्टली उसको पहले रिकॉर्ड करना है. ठीक है, वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगी अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया है. क्रेडिट पे परचेज करने से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे ही आप उसको लाइबिलिटी बोलते हो कि हाँ ये मेरी लाइबिलिटी है, मुझे अभी परचेज मैंने की है, क्रेडिट परचेज की है तो मुझे उसको वापस पे बैक करनी है. ठीक है, सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जब भी ट्रांजैक्शन हो आपको तब रिकॉर्ड करना है, ना कि आपको वेट करना है कि उसका सेटलमेंट हो जाए तब आप रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. आगे की प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच.